Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, friends, how are you? Are you okay? I hope so. And are you happy? I hope so. Brothers and sisters, today on this auspicious occasion, I am going to start your class. And today, inshallah ta'ala, I will teach you something. What I am going to teach you, try to understand. Brothers and sisters, you know very well, I taught you lots of things yesterday. Yesterday, I taught you one lesson from grammar, one lesson from vocabulary, one lesson from reading, and one lesson from translation. I hope you have remembered every class. मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कल का क्लास ज़रूर याद किया होगा और गुज़श्ता कल का जो भी होमवर्क है आप पूरा किए होंगे। जल्दी से मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा फिलहाल आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, सो माय क्वेश्चन इज दैट आर यू रेडी टू टॉक विद मी? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. Yes, Yes, sir. I'm ready. एवरीबडी आर यू रेडी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So just try to answer my question which I am going to ask you. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa Walaikum Walaikum rahmatullahi assalam wa assalam wa wa barakatuh. rahmatullahi rahmatullahi wa wa barakatuh. barakatuh. Waalaikum salam. Brothers and sisters, my first question is that which day is today? Here is a one question, which day is today? आज कौन सा दिन है? इसका जवाब कैसे देना है मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि आप बिल्कुल मुब्तदी हैं, बिगिनर्स हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक आप कहेंगे कि इट इज़ मंडे टुडे, या आप बोलेंगे टुडे इज़ मंडे। टुडे इज़ मंडे बहुत अच्छा जवाब नहीं है। ज़्यादा बेहतर जवाब होगा कि आप बोलें इट इज़ मंडे टुडे। सो मेरा क्वेश्चन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। Which day is today, my dear students? It It is is Monday Monday today. today. It is Monday Okay. today. Monday It today. is My next Monday question for today. you. Are you happy and enjoying my class today? क्या आज आप खुश हैं और मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं? जवाब बहुत सिंपल है। आपको कहना है आई एम हैप्पी एंड आई एम enjoying your class. Brothers and sisters, are you happy and enjoying my class today? I am Yes, happy Yes, I and am I Yes, am happy enjoying I and am and enjoying happy my and class enjoying today. your class. Oh, that's very good. That's very good, brothers and sisters. Now, I'm going to ask you next question. Do you know which date is today? आज कौन सी तारीख है? अगर कोई भी बंदा आपसे सवाल करता है तो कुछ ऐसे ही सवाल करेगा, which date is today? आपको सिंपल जवाब देना होगा, it is 6th July 2026. It is 6th July 2026 today. कुछ इस तरीके से आपको जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। Okay, brothers and sisters, now tell me which date is today? it is It is It is 6th 6th July July 2026 Is 6 today. 2026. July Thank you. 2026. ब्रदर्स आप लोग ज़रा ज़ोर से बोलें। आप मुंह में आधी आवाज़ बोल रहे हैं और आधा आप ज़ोर से बोल रहे हैं। आपकी माइक जब ऑन की जाए तो आप खूब ज़ोर से बोला करें ताकि पूरे तौर पर आपकी आवाज़ सुनाई दे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट हाउ इज़ द वेदर टुडे? आज मौसम कैसा है? कहाँ पर? आपके एरिए में। अगर आपके यहाँ मौसम बिल्कुल अच्छा है, बहुत खुशगवार है, तो मौसम के लिए बहुत प्यारा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, प्लीजेंट। क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है? प्लीजेंट। तो आप बोल सकते हैं द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। Listen to my question and answer please. How is the weather in your area today? Please tell me. जवाब दीजिए जल्दी से। माइक The ऑन है weather is बेटे, माइक ऑन है, जल्दी से जवाब दीजिए। The weather is pleasant today. The weather is द pleasant. वेदर इज वेरी प्लीजेंट, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। Weather बस is ये तो pleasant. बोलना है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? वाई आर नॉट स्पीकिंग? एवरीबडी ट्राई टू the स्पीक। सब weather लोग is बोलने की कोशिश pleasant. कीजिए। Weather is very present present today. My next question for you is that who is your English teacher? It is a very easy question. Who is your English teacher? You know very well. My name is Khurshid Anwar, so you can answer. Khurshid sir is my English teacher. Yes, brothers and sisters, listen my question and give an answer.
Who is your Khurshid English sir. teacher, brothers and sisters? Khurshid sir is my English My teacher. sir teacher. My English teacher. Okay, my next question for you. How is he teaching? वो कैसा पढ़ा रहे हैं? अभी आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो कैसा पढ़ा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको बोलना होगा ही इज टीचिंग वेल, WELL वेल। ठीक है, तो WELL को आप टीचिंग के बाद रखेंगे और सही जवाब देंगे। हाउ इज ही टीचिंग नाउ? सही जवाब दीजिए। He is teaching well. Teaching well. He is teaching well. He is teaching well. Very good. Do you like his teaching style? एक क्वेश्चन है, मतलब क्या आपको उनके पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद है? पसंद है तो आप बोलिएगा यस, आई लाइक हिज टीचिंग स्टाइल टू मच। आई लाइक हिज टीचिंग स्टाइल टू मच या आई लाइक हिज टीचिंग स्टाइल अ लॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं। Okay, dear students, do you I like like his his- teaching style? Answer I please. like his Yes, teaching I like style so much. style. Very good. देखो, अभी आप मेरे सामने बिल्कुल बच्चे हैं, क्योंकि अभी आप हमारे कोर्स के 9वें सबक में हैं। 8 लेसन पूरे हुए हैं। आज हम लोग 9वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, 9th लेसन। बिल्कुल मुब्तदी सबक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह आपसे बातें करूँ तो आप मुझे सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं जिस तरह एक छोटे बच्चे को जो चलने के लायक होता है तो उंगली पकड़ा करके चलाना सिखाता हूँ, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन और फिर उसका आंसर मैं ही दे रहा हूँ। बस आपको उसको रिपीट कर लेना है, क्वेश्चन समझना है और फिर उसका जवाब देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो गोया कि 100% आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक और सवाल, डू यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश टीचर एंड ट्रेनर? क्या आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश टीचर और ट्रेनर बनना चाहते हैं? आपका सिंपल जवाब होगा यस सर, व्हाई नॉट, आई वांट टू बी अ गुड इंग्लिश टीचर एंड ट्रेनर। तो यहां पर आपके जवाब को फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, यस सर, हाँ सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंग्लिश टीचर एंड ट्रेनर, मैं एक अच्छा सा इंग्लिश टीचर और ट्रेनर बनना चाहता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ टेल मी, डू यू वॉन्ट टू बी अ गुड इंग्लिश टीचर एंड ट्रेनर? आंसर प्लीज। Yes, sir. I want to become an English teacher. To become a friend. My next question for you, that which is your favorite subject? Which is your favorite subject? आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश भी उन्हीं में से एक है। इंग्लिश को आप में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंग्लिश में बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आंसर प्लीज, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्लीज टेल मी। English is English is my favorite subject. My next question for you. Are you a Muslim? क्या आप एक मुसलमान हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब है yes, I'm a Muslim. बस। Are you a Muslim, brothers and sisters? Please tell me. Yes, I am Muslim. Yes, I am Brothers. Muslim. Now, I'm going to ask you next question. Do you believe in the? Do you believe in the whole? You can say that. Do you believe in Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? क्या आप अल्लाह और उसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं? तो जाहिर सी बात है, एक मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। आपका जवाब होगा यस आई बिलीव। बिलीव के बाद इन अल्लाह लाना, बिलीव का सिला इन आता है, लिहाजा आपको बोलना होगा आई बिलीव इन अल्लाह एंड हिज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू बिलीव इन अल्लाह एंड हिज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? Yes, sir. That's very good. Now my next question is that what is Islam? Because you follow Islam, you are a Muslim. So can you tell me what is Islam? So Islam का तारुफ चंद जुमलों में कुछ इस तरह बोलना है,
Islam is a peaceful religion. Islam is the true religion. Islam is the best religion. Islam is the religion that is accepted by Allah. As Allah says in the Holy Quran, Inna Deena indallahi al-Islam. Truly, the religion which is accepted by Allah is Islam. कुछ लंबा जवाब देना है आपको. सवाल छोटा है लेकिन जवाब बहुत लंबा. What is Islam, brothers and sisters? Now tell me. Islam is a Islam peaceful Islam religion. is Islam is the best religion. Islam is the best religion. By Allah as Allah says, Islam is a peaceful religion. Inna Deena indallahi al-Islam. Allah says in the Holy Holy Quran, Quran, Inna Inna Deena Deena indallahi indallahi Islam. Truly, the religion which is accepted by Allah is Islam. Okay? Chali. Yes, sir. Wonderful conversation, brothers and sisters. Now I'm very happy that you have answered my every questions. In spite of you are a beginner student, you are answering me well. You are answering me well. I'm so happy because you have conversed me in English language. And if you are able to converse in English now, so I hope tomorrow you will become a good English speaker. Brothers and sisters, tomorrow you will become a good English speaker, teacher and trainer. You will not have to take tension. You are taking online class with Khurshid sir. I have 15 years experience of teaching and I am more than 6 books. I'm a writer of more than 6 books and every books which I am teaching right now are written by me. Okay, so brothers and sisters, if you want to learn English language, if you want to become a good English teacher, whether you are Hafiz Quran, Alim Deen, you are from Madrasa background, you know Urdu language, this platform is wonderful platform for you. Just start to learn English with me live. Here in live class, I ask you question and I give you chance to answer and I listen your lesson and I also talk to you. लाइव क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा आपसे बातचीत की जाती है, आपको बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, अंग्रेज़ी में तकरीर करने की ट्रेनिंग दी जाती है. हर जुमरात में अंजुमन के अंदर आपसे इंग्लिश में तकरीर करवाया जाता है, सबक सुने जाते हैं, जुमले चेक किए जाते हैं, बातचीत की जाती है, बोलने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है. इसीलिए मेरा लाइव क्लास नो मीन लाजवाब, ऐसा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा. इफ यू वांट टू लर्न सिटिंग एट योर होम, अगर घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, just call me by dialing 752000 and 7006. Listen again, 752000 and 7006 and call me, talk and discuss about the class. Then you should take admission and start your class. Brothers and sisters, now I'm going to share my screen and I'm going to teach you chapter number 9 from Muntakhab Angrezi Grammar part 1. So everybody, I request you that please listen to me carefully. As you know very well, yesterday I taught you all kinds of sentences. Yesterday I told you that there are 3 kinds of sentence. First is that assertive sentence, and second is that in interrogative sentence, and third is that, brothers and sisters, imperative sentence. Start to understand? So what I am going to say you, listen to me carefully. This is a chapter number 13, but now I am coming chapter number 9. What I taught you yesterday, कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कल मैंने आपको दर्स दिया था जुमले के अक़साम, जुमले की किस्में, जहाँ पर आपको समझाया गया था, ये था लेसन नंबर 8 गुज़श्ता कल का सबक, जहाँ पर ये बताया गया था जुमले की अव्वल वहला 3 किस्में 4 किस्में होती हैं, लेकिन इनमें से 3 के हर एक की 2-2 किस्में होती है. जब इंसान अपने मुंह से कोई भी जुमला बोलता है, we are human being, when we speak any sentence from our mouth, then our sentences will be 3
तीन तरह के होंगे। फर्स्ट इज दैट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज दैट इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की भी दो किस्में होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, मुस्बत और मनफी जुमला। जब हम जवाब देते हैं तो उस वक्त असर्टिव सेंटेंस को प्रयोग करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी फिर दो किस्में होती हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन हाँ या ना वाला सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना से दिया जा सके, और WH क्वेश्चन एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना से ना दिया जा सके। और तीसरा होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस फेले अम्र को कहते हैं और निगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस फेले नहीं को कहते हैं। मुतलकन इंपैरेटिव सेंटेंस जुमला हुक्मिया को कहते हैं, और जुमला हुक्मिया वो होता है जिससे हम किसी को कोई कार्य करने का हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे जुमलों को ब्रदर्स एंड सिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। आगे चल करके हम इसके मबाहिस को अच्छी तरह पढ़ेंगे। मेरा मुद्दा आज ये है यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। सवाल ये है पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे ये तो हमें आता है, पर निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे ये भी हमें आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब इंग्लिश में बातचीत करने की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश में लब कुशाई करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है किस चीज़ पर? सवाल बनाने पर। वे लोग सवाल नहीं बना पा रहे, अपने मुंह से सवालिया कलिमात निकाल नहीं पा रहे हैं, सामने वाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी वजह उनको सवाल करने पर तजर्बा नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेसन नंबर 9 और 10 पर आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, आप सवालात करने पर माहिर हो जाइएगा। आइए हम चैप्टर नंबर 9 को स्पेशली यस नो क्वेश्चन के बजाय WH क्वेश्चन में जिन वर्ड्स को प्रयोग किया जाता है उनकी एक लिस्ट पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर सवालिया अल्फाज कितने हैं और कौन कौन हैं, और डियूरेशंस किन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अजीज़ क़ारीन, आइए अब हम अपने कोर्स के 9वें सबक में क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स भी जुमले के एक अहम जुज़ है, खुसूसन सवालिया जुमला बनाने के लिए जुमले के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। वाज़े रहे, चाहे वो उर्दू, इंग्लिश, उर्दू हिंदी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश या अरबी की बातें कीजिए। जब भी कोई भी आप सवालिया कलिमा, सवालिया लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे अपने जुमलों में, तो उसे आपको सबसे शुरू में जगह देना पड़ेगा। अरबी में देखो ना, अगर हमें पूछना है कि मौलाना क्या आप मुझे जानते हैं, या क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, हल अंत ततकल्लम अल-लुगतल इंग्लिज़िया। यहाँ पर हल को यूज़ किया गया जो कि एक सवालिया लफ्ज़ है। मैं पूछता हूँ आप कहाँ के हैं, तो आप बोलते हैं मिन अयना अंत या शेख, आप कहाँ के हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पर अयना को यूज़ किया गया है, ठीक है। लिमाज़ा तक़ूल, आप क्यों कहते हैं, या ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, लिमाज़ा को प्रयोग किया गया है, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अरबी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद इंग्लिश पढ़ाना है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के भी जो सवालिया अल्फाज हैं इन्हें बिल्कुल जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। सवालिया अल्फाज हमेशा तकदीम को चाहते हैं, मुक़द्दम होना चाहते हैं, लिहाजा जो कोई भी सवालिया जुमला बोलिएगा उसकी शुरुआत किसी न किसी सवालिया लफ्ज़ से आपको करनी पड़ेगी, और वो सवालिया लफ्ज़ ही आपको नहीं पता तो भला आप अंग्रेज़ी में सवाल कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स की फहरिस्त से रोशनास कराया जाएगा। सबक को बगौर पढ़िए। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। पिछले सबक में आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 यस नो क्वेश्चन, नंबर 2 WH क्वेश्चन। इन दोनों में से यस नो क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग से कोई सवालिया अल्फाज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बखूबी जानते हैं यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है भाई साहब, बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर देने से यस नो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक जुमला है इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, क्या ये सच है। इससे अगर मुझे ये कहना है क्या ये सच है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे इज़ इट ट्रू। इज़ इट ट्रू, पहले इट आ रहा था, बाद में इज़। हमने क्या किया, इज़ को पहले और इट को बाद में कर दिया। ऐसे करने की वजह से
ऑटोमेटिक क्या का माना पैदा हो गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा ही होता है। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे पूछना है क्या आप एक स्टूडेंट हैं? तो आर को पहले और यू को बाद में करिए और जुमला बनाइए। आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 kg उठा सकता हूं, इसको अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या मैं 50 kg उठा सकता हूं, जुमले की शुरुआत क्या से किया? आप कैन को पहले और आई को बाद में करिए और जुमला बनाइए। कैन आई लिफ्ट 50 kg? क्या मैं 50 kg उठा सकता हूं? 100% ये सही है जी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट आपको बखूबी याद है एक सांस में, मैंने आपको याद करवाया था ना एक सांस में। इज, आर, एम, वज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, मस्ट, हाउ टू, डू, डज, डिड, वुड। तो ये जितने हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, मस्ट, हाउ टू, डू, डज, डिड, वुड, इनको आप करिए पहले और ड्यूरेशन सब्जेक्ट को कर दीजिए बाद में। ऑटोमेटिक इससे सवालिया जुमला बन जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, आर यू गेटिंग और नॉट? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस डियर स्टूडेंट्स। नाउ तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करने से यस नो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इट इज ट्रू को इज इट ट्रू। लेकिन WH क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से सवालिया अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, इनके बगैर कोई सवालिया जुमला बन ही नहीं सकता। अगर आप जुमले की शुरुआत लफ्ज़ क्या से नहीं क्यों से कर रहे हैं, क्यों से नहीं कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कब से कर रहे हैं, कब से नहीं कैसे से कर रहे हैं, ऐसे तमाम जुमलों में आपको क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? और डिरेक्शंस, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए इस सबक में आपको सवालिया अल्फाज की फहरिस्त दी जा रही है, आप इसे खूब अच्छी तरह याद कर लें। ये हैं वो सवालिया अल्फाज। नंबर 1, व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की माहियत को पूछने के लिए। आप कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, मतलब आप इस चीज़ की हकीकत पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ नाउन, तो आप कहते हैं नाउन इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एनी थिंग्स, प्लेस और एनी पर्सन। नाउन वो होता है जो हमें किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपने नाउन की तारीफ़ किया, नाउन की हकीकत बयान की। मैंने पूछा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, मुझे नहीं मालूम कि इसकी हकीकत क्या है, ये कौन सी चीज़ है। तो आप बोलते हैं दिस इज़ अ मोबाइल, कि एक मोबाइल है। तो यहाँ से आप जवाब दे रहे हैं व्हाट टाइम। देखो व्हाट टाइम और व्हेन ये दोनों ही वक्त मालूम करने के लिए आते, लेकिन व्हाट टाइम दरअसल वॉच टाइम यानी घड़ी का वक्त मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वेन को दोनों तरीके के वक्तों के लिए यूज़ किया जाता है। दरअसल टाइम की 2 किस्में होती हैं। आप ज़रा कैलेंडर उठाकर देखें, वहाँ पर किन किन औकात का तज़किरा होता है। वहाँ पर डे, मंथ, ईयर, डेट, मंथ, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। कैलेंडर में क्या होता है, महीने, तारीख या इसी तरीके से दिन, साल और महीना वगैरह का तज़किरा होता है। लेकिन एक घड़ी में देखो क्या होता है, घड़ी में फजर मतलब तुलुए आफ्ताब से लेकर फिर रात तक, यानी रात्रि 12 बजे से लेकर अगले दिन रात के 12 बजे तक क्या समय हो रहा है, 24 घंटे का वक्त बताया जाता है। यहाँ पर दिन, महीना, तारीख नहीं बयान किया जाता है। इसको हम कहते हैं वॉच टाइम। तो व्हाट टाइम को यूज़ किया जाता है वॉच टाइम के लिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू टेक द क्लास, आप किस वक्त क्लास लेने जा रहे हैं, मतलब मुझे स्पेसिफिक टाइम बताइए। तो आप कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक क्लास एट 11 o'clock। इसी तरह वेन आता है, बट वेन का इस्तेमाल होता है दोनों के लिए, उमूमी है, वॉच टाइम और कैलेंडर टाइम दोनों के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर, वेयर, आपको इन तीनों को खूब अच्छी तरह रटना है। व्हाट टाइम वेन, व्हाट टाइम वेन, व्हाट टाइम वेन, व्हाट टाइम वेन, इस तरह रटिएगा। आपके पास किताब होगी, किताब नहीं है तो मंगा लीजिए, मेरे पास किताब मौजूद है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किताबों का ज़ख़ीरा है मेरे पास। तो अगर आप इस किताब को चाहते हो तो मेरे नंबर पर रब्ता करें। आप अपने लिए, अपने इदारे के लिए, मदरसे के लिए, आप अपने जो है बच्चों के लिए आप इस किताब को ज़रूर परचेज़ करें। वंडरफुल किताब होगी। और इसके वीडियो लेक्चर के लिए IIL देवबंद ऐप को देख लीजिए, वहाँ पर आपको हर एक सबक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, वाई, वेयर, वाई, विच। वेयर का यूज़ होता है जगह के बारे में पूछने के लिए, वाई का यूज़ होता है ड्यूरेशंस, हमें इल्लत और वजह सबब दरियाफ्त करने के लिए। विच का यूज़ होता है अक़साम बताने के लिए, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, यानी मैं जगह पूछ रहा हूँ। आप बोलिएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वाई डिड यू नॉट अटेंड माई क्लास यस्टरडे, कल आप क्लास क्यों नहीं लिए थे, वजह, रीज़न, सबब बताइए। तो बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। विच मॉस्क
विच बुक डू यू स्टडी, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। यहाँ मतलब किताबें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन कौन सी किताब आप पढ़ते हैं। तो आई स्टडी मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर, यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं। हु का मतलब कौन होता है, और होम का मतलब किसके किनके, और हुज का मतलब किसका किसका। हु, होम, हुज ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, बट ये हालत फ़ाइली में है, ये हालत मफूली में है, और ये हालत इजाफी में है। जिस तरह आई, मी, माई पर गौर करो। आई हालत फ़ाइली में वाहिद मुतकल्लिम के लिए आता है, और मी हालत मफूली में वाहिद मुतकल्लिम के लिए आता है, और माई हालत इजाफी में वाहिद मुतकल्लिम के लिए आता है। वैसे ही हु, होम, हुज है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनका इस्तेमाल आगे चल के पढ़ेंगे। अगला है हमारा हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। हाउ का मतलब कैसा, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, हाउ ऑफन कितने मरतबा, हाउ लॉन्ग कब से। सवालिया अल्फाज से बने हुए कुछ अल्फाज जो अंग्रेजी जुमलों में सवालिया अल्फाज के तौर पर नहीं, बल्कि दो जुमलों को जोड़ने के लिए हरफ अत्फ के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मुंदरज ज़ैल हैं। वॉट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, हु एवर, होम एवर, हाउ एवर, वेयर एज। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये थी हमारी WH फैमिली की लिस्ट। किसकी बताओ, WH फैमिली। WH फैमिली किसको कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को कहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। एक मुहावरा, बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है, चेंज योर इंग्लिश वर्ल्ड वेरी इजीली। आप अपनी इंग्लिश की दुनिया बदलें बहुत आसानी से, बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके। देखो, मेहनत किए बगैर कोई भी बंदा आज कामयाब नहीं हुआ है। इस दुनिया में अगर आए हैं और कामयाबी के हद तक पहुंचना चाहते हैं तो मेहनत तो लाजमी है, लिहाजा इसके लिए तैयार रहिए। 10वें नंबर का सबक हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिएगा, अब हम जल्दी से चलते हैं मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात नामी किताब से 9 नंबर का सबक पढ़ने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो कल हम लोगों ने 8 नंबर वाला सबक पढ़ा था, उसके अंदर 15 मसदर दिए गए थे और 10 अस्मा दिए गए थे। आई होप सो कि आप याद कर चुके होंगे। चलिए मैं 9 नंबर के सबक पर देखता हूँ क्या है। इसके अंदर भी वही है, 15 मसदर हैं, 10 अस्मा है। किताब का नाम मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात। ये किताब सिर्फ 125 रुपये की है। अगर किताब मंगाना है तो फौरी तौर पर ऑर्डर करें 7520070006 पर। वंडरफुल किताब है, पूरी किताब हिफ्ज़ करने के लायक है। जो लोग मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं उन्हें लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका हाफिज़ बनाता हूँ। जिस तरह एक तालिब इल्म कुरान करीम का हाफिज़ होता है, वैसे ही मेरी इन तमाम लिखी हुई किताबों का हाफिज़ बनाया जाता है मेरे लाइव क्लास के अंदर। आइंदा कल आपको फिर मैं एक सबक दे रहा हूँ जिसमें से 15 मसदर और 10 अस्मा होंगे। तवज्जो दीजिए। स्विंग, स्वंग, स्वंग मीन्स झूलना, लहराना। सले, सिल्यू, सलैन बमाना कत्ल करना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मेरे साथ तलफ़ुज़ ज़रूर किया करेंगे। वैसे उर्दू में तलफ़ुज़ यहाँ लिखा हुआ है ज़बर ज़ेर पेश के साथ, दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होगी, फिर भी मेरे साथ रिपीट ज़रूर करना है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन बमाना बोलना। नेक्स्ट वर्ड है स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन बमाना चोरी करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पिन, सेकेंड फॉर्म स्पेन, थर्ड फॉर्म स्पन बमाना घूमना। और नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग बमाना उछलना कूदना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग बमाना उछलना कूदना। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड, सेकेंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट बमाना खर्च करना। स्मेल, सेकेंड फॉर्म स्मेल्ट, थर्ड फॉर्म स्मेल्ट बमाना सूंघना, महकना। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मेलिंग हो रही है तो क्या बोलेंगे, ओ इट इज़ स्मेलिंग समथिंग, कुछ बदबू दे रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट मतलब गिरा देना, छलकाना। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब ख़राब होना। डोंट स्पॉइल माई माइंड, मेरा दिमाग न ख़राब करो। ब्रदर्स एंड सिस्टर, नेक्स्ट वर्ड पर तवज्जो देंगे। एक लफ्ज़ है स्माइट, स्मूट, स्मिटन बमाना शिकस्त फाश देना। और नेक्स्ट वर्ड है स्पिट, सेकेंड फॉर्म है स्पेट, थर्ड फॉर्म स्पेट। जब आप स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जगह जगह लिखा होता है डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्पिट हेयर एंड देयर, इधर उधर मत थूको, फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। और ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये जगह आपको आम पब्लिक प्लेसेस पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। सिट, सेट, सेट बमाना बैठना, आई एम सीटिंग मैं बैठा हुआ हूँ। स्टैंड, स्टूड, स्टूड का मतलब खड़ा होना, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। नॉलेज, इल्म को कहते हैं। इग्नोरेंस, जहालत। जॉय, खुशी। सौरो का मतलब दुख।
ब्राइट का मतलब चमकीला, डार्क मिस होता है अंधेरा, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स साइलेंस का मतलब होता है खामोशी। शोर के लिए नॉइज़ का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, जबकि आप देख लीजिएगा सुपीरियर और इंटीरियर। ब्रदर्स एंड सिस्टर तवज्जो दीजिए, यस। तो ये हो गया हमारा नॉइज़ और डियर स्टूडेंट्स, यस। तो ये हमारा एक वंडरफुल चैप्टर मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात से पूरा हुआ। उम्मीद कि आप ये भी समझ गए होंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब मैं आपको मुंतखब अंग्रेज़ी रीडर से एक दर्स देने वाला हूँ। थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, आप सभी से कहूँगा कि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो ग्रामर पर, पहले तो मैंने स्पीकिंग की, स्पीकिंग के बाद ग्रामर का दर्स दिया। स्पीकिंग काफ़ी लंबी चौड़ी हुई है हमारी, अंग्रेज़ी बोलना सिखाया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने आपको ग्रामर का सबक दिया है, उसके बाद लुगत का सबक, और अब हम चले रीडिंग के सबक के लिए। रीडिंग के लिए खुर्शीद सर की ये किताब वंडरफुल, लाजवाब है भाई साहब। कुरान, हदीस, सूरतों के तर्जमे, मसले मसाइल, फ़िक़ी मसाइल, इस्लामिक स्टडीज़, सब कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है। आप लोग ज़रूर भी ज़रूर या तो लाइव क्लास लीजिए या फिर आप मेरे रिकॉर्डेड क्लास को लीजिए। मेरा रिकॉर्डेड क्लास भी बिल्कुल लाइव ही की तरह होता है, बट वहाँ पर सबक सुनने उनने का अमल नहीं हो पाता है, बाकी सेम वही होता है। जो कुछ लाइव क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वही सेम सब चीज़ें रिकॉर्डेड क्लास में भी हैं। अब लाइव में ये फ़ायदा होता है कि यहाँ आपके सबक सुने जाते हैं, जुमले चेक किए जाते हैं, थोड़ी बातचीत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप मेरी लाइव क्लास को अटेंड करते हैं और लाइव क्लास के साथ आप मुकम्मल फ़ीस अदा करते हैं लाइव क्लास की, तो रिकॉर्डेड कोर्स मुफ्त में दिया जाता है। चैप्टर नंबर 9 सेलेक्टेड इंग्लिश रीडर से तवज्जो चाहूँगा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रोफेट, सीरत के मौजू पर यह चैप्टर है। पिछले 2-3 चैप्टर में भी हम लोग, तीसरा चैप्टर है बल्कि ये सीरत के मौजू का तीसरा चैप्टर है। पहले हमने सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ यानी पैदाइश और उनके अहवाल को पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और नशो नुमा कैसे हुई वो पढ़ा। फिर एक और चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ ट्रेडर, एक ताजिर के तौर पर तिजारती जो अपनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी हज़रत खदीजा के साथ, और हज़रत खदीजा के साथ जो विवाह का मामला हुआ था वो हमने पढ़ा। और अब हम सीरत का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, उस वक्त कौन सा वाक़या पेश आया था, उसी वाक़े पर नज़र डालते हैं। चैप्टर नंबर 9 प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रोफेट, पीस बी अपॉन हिम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 40 years old, जब सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 40 साल के थे। was 40 years old का मतलब सिर्फ 40 साल के थे। A very important thing happened, तो एक बहुत अहम मामला पेश आया, एक बहुत अहम मामला रुनुमा हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या पेश आया। He was in the cave called Hira, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में थे जिसे गार हीरा कहा जाता है। आप गार हीरा की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसे बनाया है। एन एंजल नेम्ड जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक एंजल यानी फरिश्ता जिनका नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, केम टू हिम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, विद अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह के जानिब से एक पैगाम लेकर के। दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये पहला पैगाम था। द एंजल टोल्ड हिम टू रीड, फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए कहा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, और यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई, यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे नहीं मालूम कि कैसे पढ़ा जाता है। फिर फरिश्ते ने ज़ोर से अपने सीने के साथ दबोचा और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे नहीं मालूम कि कैसे पढ़ा जाता है। तो फिर तीसरी मरतबा दबोचा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किए। नाउ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रोफेट ऑफ अल्लाह,
और इस अल्लाह के ये पहली वही आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के आखिरी नबी बन चुके हैं। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड द पीपल टू बिलीव इन वन गॉड। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि एक खुदा पर ईमान रखो, एक खुदा और एक अल्लाह पर ईमान रखो। ही टोल्ड देम टू स्टॉप वर्शिपिंग आइडल्स। उन्होंने उनको बताया कि आप लोग मूर्ति पूजा बंद कर दीजिए। मूर्ति पूजा बंद करने के लिए उनको कहा। सम पीपल लिसनड टू हिम। कुछ लोगों ने आपकी बात सुनी एंड एक्सेप्टेड इस्लाम, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बट मेनी पीपल डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं किए। दे बिकेम हिज एनिमीज, और यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक तीसरे पैराग्राफ पर नजर डालेंगे। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज काइंड एंड पेशेंट। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से मेहरबान और साबिर थे। इवन व्हेन पीपल वर काइंड अनकाइंड टू हिम। हत्ता कि जब कभी भी लोग उनके साथ गैर मेहरबानी का मामला करते, ही नेवर फॉट विद देम, तब भी वो कभी उनसे नहीं लड़ते थे। ही फॉरगेव देम, वो उनको माफ कर देते थे। ही टॉट पीपल टू लिव विद पीस, लव एंड काइंडनेस। उन्होंने लोगों को दर्स दिया कि अमन व सुकून, प्यार व मोहब्बत और भलाई के साथ रहना सीखो, भलाई के साथ रहो। द मैसेज ऑफ इस्लाम स्प्रेड स्लोली। धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हो गया। द बिलीवर्स वर स्ट्रांग, और धीरे धीरे मोमिन मजबूत हो गए। दे फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हुआ। बट दे डिड नॉट लीव इस्लाम, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। दे केप्ट देयर फैथ, वो लोग अपने ईमान पर बरकरार रहे। लाइक दिस, इस तरह इस्लाम स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस्लाम एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैला। एंड रीच्ड द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में ये इस्लाम छा गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वंडरफुल क्लास था इस्लामियात के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, अगर रीडिंग स्किल की सही करनी है तो आप हर एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ो, वोकैबुलरी क्लास पर तवज्जो देते हैं। ब्रदर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेट, इसका मतलब नबी होता है। केव का मतलब गुफा, गार को कहते हैं। एंजल, इसका मतलब फरिश्ता होता है। मैसेज, संदेश को कहते हैं, पैगाम। और रीड का मतलब पढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। स्टार्ट का मतलब आगाज़। आइडल का मतलब होता है मूर्ति। और डियर स्टूडेंट्स, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। पेशेंट का मतलब साबिर। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। पीस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स अमन सुकून। और लव का मतलब मोहब्बत। स्प्रीड का मतलब फैलना। और फैथ का मतलब ईमान। प्रॉब्लम्स का मतलब मसला। बिलीव का मतलब विश्वास करना, हिंदी में ईमान लाना। लास्ट का मतलब अंतिम और आखिरी। कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको तलाश करना है। अगर आप पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। हाउ वॉज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हाउ ओल्ड वॉज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही गॉट द फर्स्ट मैसेज। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला पैगाम मिला तो आपकी उम्र कितनी थी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ केव, उस गार का नाम क्या था। हु ब्रॉड द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह के जानिब से पहला पैगाम किसने लाया। व्हाट डिड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल द पीपल टू बिलीव इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ पर ईमान लाने के लिए लोगों को कहा। हाउ डिड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट पीपल हु वर अनकाइंड टू हिम, जो लोग आपके साथ बेरहमी से पेश आते थे आपने उनके साथ कैसा बर्ताव करने का दर्स दिया। व्हाट हैपेंड टू द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगाम के सिलसिले में क्या हुआ था। व्हाट डिड द बिलीवर्स डू व्हेन दे फेस्ड प्रॉब्लम्स, जो मोमिन थे वो क्या करते थे जब उन्हें परेशानी लाहिक होती थी। फिल इन द ब्लैंक्स की ये जुमले हैं। द नेम वॉज, द केव वॉज, ये सब फिल करना है। और नीचे डियर स्टूडेंट्स एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ मुस्लिम इज वन हुज टंग एंड हैंड अदर्स आर सेफ। एक मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथों से
दूसरे लोग महफूज हों। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंडरफुल क्लास के बाद मैं थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगा, और वो मैं 2 सबक और देने जा रहा हूँ। एक तो हम आपको स्पीकिंग के 10 जुमले पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी से दरख्वास्त है कि उन तमाम 10 जुमलों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और कंटेंट मैं आपको फराहम करूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ऑलरेडी मैंने वो 10 जुमले भेज दिया है। तवज्जो चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, वेट मोमेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, रीडिंग से भी और ट्रांसलेशन से भी। रीडिंग का पहले तो हम ट्रांसलेशन का क्लास दे रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। ट्रांसलेशन के इस पोस्टर को मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। ट्रांसलेशन के इस पोस्टर को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है ब्रदर्स एंड सिस्टर, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं पहला जुमला क्या है। पहला जुमला है ट्रेन आ रही होगी। व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको समझाया है कि कोई भी कार्य जो ज़माने मुस्तकबिल में लगातार और मुसलसल हो रहा होगा, इसके लिए टेंस आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ग्रामर में आप आगे चल के इसे पढ़िएगा, उसी टेंस से ये सब जुमले बनेंगे। उस टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इन तमाम 10 जुमलों में किसी न किसी एक्शन यानी काम यानी क्रिया को लगातार होने की बात कही गई है। ट्रेन आ रही होगी, जुमला क्या होगा? द ट्रेन विल बी अराइविंग। मैं सो रहा हूँगा, गौर से सुन लीजिए, आप पहले इसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। जी जल्दी से बनाइए। मैं सो रहा हूँगा, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी मैं, फिर उसके बाद हूँगा के लिए डियर स्टूडेंट्स विल बी लाएंगे। आई विल बी स्लीपिंग। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? बोल दीजिए आई विल बी स्लीपिंग। इसे थोड़ा सा मैं पतला कर दे रहा हूँ। वे लोग मैच देख रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या है गौर से देखिएगा। वे लोग मैच देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग द मैच। हम लोग काम कर रहे होंगे, वी विल बी वर्किंग। खुर्शीद सर पढ़ा रहे होंगे, खुर्शीद सर विल बी टीचिंग। क्या तुम्हारे वालिद साहब आराम कर रहे होंगे? विल योर फादर बी हैविंग अ रेस्ट? विल योर फादर बी हैविंग अ रेस्ट? वो नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग, ही विल नॉट बी कमिंग। क्या वे लोग बैठे हुए होंगे? विल दे बी सीटिंग? वो नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग। और राशदा खाना नहीं बना खा रही होगी, राशदा विल नॉट बी ईटिंग फूड। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये हमारा एक चैप्टर था, वंडरफुल चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए। और अब हम स्पीकिंग का नवा सबक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, ये आखिरी सबक है। स्पीकिंग के नवे सबक के लिए मैंने यहाँ पर स्पीकिंग क्लास ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। Why it is not being opening? स्पीकिंग का नवा क्लास, इट इज़ नॉट बीइंग ओपनिंग। हाँ यस, हो गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पर तवज्जो देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये है डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी सबक है, उसके बाद हमारा क्लास पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्लास में क्या कुछ कहा गया है। तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐलान बता दूं, ऑनलाइन अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं तो दाखिले जारी है। जिस सेंटर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसका नाम है IIL देवबंद, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जिस कोर्स को हम लोग कर रहे हैं या करेंगे इसका नाम है 1 साल इंग्लिश स्पीकिंग प्लस डिप्लोमा कोर्स। आप इस कोर्स को लाइव या रिकॉर्डेड दोनों माध्यम से ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बहुत सस्ता, लगभग 100 रुपया मंथली फीस पर आ जाता है, और लाइव थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पर बातें करें स्पीकिंग क्लास के नवे सबक का, तो साहिब किताब खुर्शीद अनवर कहते हैं प्लीज़ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर स्पीकिंग नोटबुक, के मुंदरजा झैल तमाम जुमलों को आप अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में लिखें एंड रिमेंबर दिम बाई हार्ट, और इसे हिफ्ज़ याद कर लीजिए। मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। यहाँ पर पास रखने वाले जुमले दिए गए हैं, जैसे मेरे पास ऐसा है वैसा है, तो आई हैव के बाद कुछ भी लाइए। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव नॉलेज, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं।
आई हैव अ ब्यूटीफुल रिंग, मेरे पास एक खूबसूरत रिंग है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस तरीके से आई हैव के साथ सैकड़ों जुमले आप बना सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, एक जुमले सैकड़ों जुमले बोलने पर आपको आमादा करेगा। लिहाजा इसे कॉपी में लिखें और इसे रटें। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? सवाल है, डू यू हैव अ मोबाइल। यहाँ पर कुछ मजीद क्वेश्चन कीजिए। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है? डू यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है? डू यू हैव अ कार। इस तरह मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सब कुछ। और डियर स्टूडेंट्स कहना है कि मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, घर है, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव ब्रो, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग। 85 नंबर का सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनीथिंग। आपके पास कौन सा मोबाइल है? विच मोबाइल डू यू हैव, कैसे बोलिएगा? आपके पास कौन सी किताब है? विच बुक डू यू हैव। आपके पास कौन सा लैपटॉप है? विच लैपटॉप डू यू हैव। आपके पास कौन सा कोर्स है? विच कोर्स डू यू हैव। हज़ारों जुमले बना सकते हैं ब्रो। हमारे पास दो मकान और दो दुकान और एक मकान है। वी हैव टू शॉप्स एंड अ हाउस। वी हैव टू शॉप्स एंड अ हाउस। आपके पास कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव। मेरे दो लड़के और दो लड़कियां हैं। आई हैव टू बॉयज़ एंड टू गर्ल्स। जब कभी भी इस तरह की बातें करते हैं ना, मेरे पास एक लड़का है, आई हैव अ सन। मेरे पास दो लड़की हैं, आई हैव टू डॉटर्स। इस तरह बोलेंगे। मेरे तीन भाई हैं, आई हैव थ्री ब्रदर्स। मेरी एक बहन है, आई हैव वन सिस्टर। इस तरह बोल सकते हैं। उनके पास बच्चे हैं तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, आई हैव टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। उनके पास बच्चे नहीं हैं, दे डोंट हैव चिल्ड्रेन। डियर स्टूडेंट्स, नामों के इंदराज के लिए यही वो नंबर है जिस पर आपको संपर्क करना है, 7520070006। या तो आप लाइव क्लास लीजिए या फिर रिकॉर्डेड ले लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे की किल्लत है तो आप डियर स्टूडेंट्स सिर्फ किताब ही मंगा लीजिए। किताब से ही स्टडी शुरू कीजिए। जब थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो फिर कभी लाइव क्लास ले लीजिएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंडरफुल क्लास हमारा पूरा हुआ। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप लोग क्लास में जम जाइए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स एनफ फॉर टुडे।